Hello, good morning. How are you all? Hope you're all fine. So today's topic is circle and radius of convergence. There is a definition, that is the circle mod z equal to r, which includes in its interior mod z less than r all the values of z for which the power series converges. This is called circle of convergence, and this r is called the radius of convergence. So there is a formula that is known as the Hadamard's formula, which is r is equal to 1 over a, where a is equal to limit n tends to infinity supremum of mod an the power 1 by n. We have taken limit superior because we don't know whether mod an 1 by n is convergent or divergent. If it is convergent, then supremum need not be taken, but if we don't know, then we take supremum over here. So if the series is convergent, then supremum need not be taken. Next is, there is a note. If an is a sequence of positive constants, then the limit n tends to infinity mod an the power 1 by n is also equal to limit n tends to infinity mod of an plus 1 over an. That is, now your r is also equal to limit, since it is r is 1 over a and a is this, so this r will be 1 over this limit. So can I write n tends to infinity, instead of an plus 1 I should write an over an plus 1. Okay, so this is the formula. There are two formulas for r. First is this and the second is this, which is further equal to 1 over limit n tends to infinity mod of an the power 1 by n. Alright, okay. If mod z is less than r, then the series is convergent. If mod z is greater than r, then the series is divergent. So there is a remark, that is the power series converges absolutely and uniformly within its circle of convergence and diverges outside it. So if mod z is less than r, then the series is convergent. If it is greater than r, then the series is divergent, where r is the radius of convergence. Some of the notes are here. Some of the formula or series, that is 1 over 1 minus x. These notes are used in the proof of the theorems or in the questions, so you should know of this. This is 1 minus x to the power minus 1. If I open this, I will be getting 1 plus x square plus x cube up to so on for mod of x less than 1. Thus, summation x to the power n. This is summation x to the power n also, where n starts from 0 to infinity. This summation is equal to 1 over 1 minus x for mod of x less than 1. तो यहाँ से हमने ये formula gain किया है. This is your note 1. The other one is 1 over 1 minus x whole square. This is equal to 1 minus x power minus 2. Which is further equal to, this is 1 plus 2x plus 3x square plus 4x cube up to so on for mod of x less than 1. Thus, summation n going from 0 to infinity, this series can be written, the nth term is n into x to the power n minus 1. This is equal to 1 over 1 minus x whole square
for mod of x less than 1. Next is third note. If n is a positive integer, then a plus b the power n, this is equal to, we know that nc0 a the power n plus nc1 a the power n minus 1b plus so on ncn a the power 1 b the power n minus 1 plus, so this is n minus 1 ncn b the power n. Next, where what is nc0? This is 1 and ncn is also equal to 1. nc1 is n and this n is also equal to ncn minus 1, where in general ncr is equal to n factorial over r factorial into n minus r factorial. When you put your n as this and r as 0, you will get this value as 1. So for nc1 it is n, for ncn it is 1, for ncn minus 1 it is n, and 0 factorial is equal to 1. So now there is a theorem which is very important. So इस theorem को हम तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं. Number 1, every power series represents an analytic function within its circle of convergence. जो भी उसका circle of convergence है, suppose this is the circle of convergence, that is mod z is equal to r. इसके अंदर अंदर जो भी पावर सीरीज होगी वो एक एनालिटिक फंक्शन एज अ एनालिटिक फंक्शन रिप्रेजेंट करेगी. सो सेकंड वे आप इसको पढ़ सकते हैं. लेट एफ जेड दैट इज दिस बी अ पावर सीरीज अराउंड जेड नॉट विद इन पॉजिटिव आर, देन एफ जेड इज एनालिटिक फॉर मॉड जेड लेस देन आर. एक ही बात है, मॉड जेड लेस देन आर विथ एफ डैश जेड दैट इज द डेरिवेटिव फॉर द एफ सेट इज दिस summation n an z minus z not the power n minus 1. If you differentiate this, you will get this thing, f dash z. So the third way is, if a function f z is a pointwise limit of a power series. Now the pointwise means it is not uniformly convergent. So it is pointwise limit of power series in mod z less than r, then fz is analytic for mod z less than r with f dash z as this. So we have to prove this theorem. Okay, let's start. For simplicity of writing and without loss of generality, we may take this z naught to be equal to 0. Let's start. So I'm taking this z naught without loss of generality, or for simplicity, जिसके अराउंड z naught के अराउंड जो पावर सीरीज जो हमने प्रूफ करनी है, मैं वो z naught पॉइंट लेती हूँ ओरिजिन 0. ओके, एंड लेट mod of z is less than r, where r is your radius of convergence. Now if mod z is less than r, we can choose a row such that this mod z is the less than row less than r. So suppose this is mod of z, this is radius of convergence. If mod z is less than r, we can choose a row in between them. So I have chosen row
such that mod of z less than rho less than r. ठीक है, अब बिकॉज mod ऑफ z जो है वो रो से भी छोटा है, तो एक छोटा सा मैंने h लेना है, वेरी स्मॉल, दैट इज its absolute value, that is mod h, such that this mod of z plus mod h less than rho, मतलब एक छोटा सा मैंने h लेना है mod लेकर, जिसको अगर इसके अंदर मैं प्लस करती हूँ वो भी रो से छोटा होता है. So choose h small enough in absolute value such that mod of z plus mod of h, this is also less than equal, less than rho, strictly less than rho. Now we know that thus अगर हम mod लेते हैं z plus h, this is less than equal to this mod z plus mod h, and this is further less than rho. Is this thing clear? Okay. Now our power series is convergent for mod z less than r. So it is also अगर mod z less than r के लिए power series convergent है, तो mod z less than rho के लिए भी तो, और rho खुद r से छोटा है, तो अगर हम mod z less than r की बात करें तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि वो जो पावर सीरीज़ है वो रो लेस देन r के लिए भी कन्वर्जेंट है. देखो ना, mod z लेस देन r है और mod z लेस देन रो है, और रो खुद लेस देन r है, तो अगर हम इसको हाइड करते हैं इस चीज़ को, तो हमारा रहता है रो लेस देन r. सो हम लिख सकते हैं कि पावर सीरीज़ कन्वर्जेंट है mod z लेस देन r एंड रो लेस देन r. तो उसके लिए हम जो पावर सीरीज़ आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है a n z, ये तो ज़ीरो है, a n z दी पावर n, तो हम a n रो दी पावर n लिख सकते हैं. ठीक है, so I'm writing since summation n going from 0 to infinity, this is your power series, this is convergent for mod z less than r, it is given, and also rho is also less than r. ठीक है, therefore summation n going from 0 to infinity a n, instead of z I will write rho, because rho is also less than r. Rho the power n is convergent. ओके जो भी पावर सीरीज़ आपकी कन्वर्जेंट होती है, हम उसकी लिमिट जो है ज़ीरो लिखते हैं. सो दस लिमिट n टेंड्स टू infinity a n rho n is equal to 0 because the series is convergent. ओके, सो इन पर्टिकुलर अब देखो, जो भी आपकी कन्वर्जेंट सीरीज़ है वो आपकी बाउंडेड होती है. जो सीरीज़ आपकी अनबाउंडेड होगी, उसकी लिमिट इन्फिनिटी तक जाएगी बिकॉज दैट सीरीज़ इज़ अनबाउंडेड, और जो सीरीज़ आपकी बाउंडेड होगी उसी की लिमिट हमारी, वही सीरीज़ हमारी कन्वर्जेंट होगी. ठीक है, सो फॉर कन्वर्जेंट सीरीज़ द सीरीज़ इज़ बाउंडेड. So in particular there exists k such that mod of a n rho the power n, this series is bounded. ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ब्रैकेट में, if limit n टेंड्स टू इन्फिनिटी a n ज़ीरो होती है अगर लिमिट, तो वो सीरीज़ जो आपकी बाउंडेड होती है. देन a n इज़ बाउंडेड. तो इसीलिए इफ़ लिमिट a n रो n इज़ ज़ीरो, देन a n रो n इज़ बाउंडेड,
और क्योंकि वो बाउंडेड है तो इसका मॉड हम लेस देन इक्वल टू के लिख रहे हैं. फॉर n starting from 0 1 2 3 so on, राइट. इसको हम स्टार ले लेते हैं या 1 मार्क कर लेते हैं. टेक दिस एज 1. ओके, नाउ अब हमें प्रूफ करना है f ऑफ, देखो हम कैसे ये चीज़ लेंगे. हमें प्रूफ करना है f डैश z इज इक्वल टू दिस. तो इंस्टेड ऑफ f डैश z आई एम राइटिंग f of z plus h minus f of z over h that is equal to f dash z. तो ये चीज़ माइनस ये राइट हैंड साइड उसका मॉड हमें ये ज़ीरो प्रूफ करना है. जैसे ही ज़ीरो हो जाएगा तो ये उस साइड चला जाएगा. तो मैं ये सारी की सारी RHS लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ और इन दोनों को सबट्रैक्ट करके उसका मॉड लेके मुझे ज़ीरो लेके आना है. ठीक है, तो f डैश z की जगह मैं लिख रही हूँ z plus h minus f of z over h minus summation n from 0 to infinity n an z the power n minus 1. इस मॉड को मुझे ज़ीरो प्रूफ करना है, इसलिए मुझे स्टार्ट यहाँ से करना है. सो दिस इज़ इक्वल टू स्टेप, सब ध्यान से समझना. हम 1/h को बाहर ले लेते हैं. व्हाट इज़ f ऑफ z प्लस h? हमारी पावर सीरीज f ऑफ z क्या है? an z दी पावर n. तो z प्लस h की जगह हम क्या लिखेंगे? z प्लस h दी पावर n an इंटू z प्लस h दी पावर n. सो दिस इज समेशन 0 टू इन्फिनिटी an. अब z की जगह क्या लिखना है? z प्लस h. ठीक होगी बात. माइनस f ऑफ z इज समेशन 0 टू इन्फिनिटी an z दी पावर n. ठीक, h मैंने साइड पे ले लिया. माइनस दिस इज एज इट इज. ठीक, ब्रैकेट में लिख देते हैं एज सम 0 टू इन्फिनिटी an zn इज योर पावर सीरीज. ठीक होगी बात. ओके, नेक्स्ट मॉड ऑफ. अब ये समेशन और an ये हम बाहर ले लेते हैं और h अंदर ले जाते हैं. समेशन n गोइंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an. ठीक है, ये बाहर कर लिया और अंदर क्या रह गया? z प्लस h द पावर n माइनस z द पावर n डिवाइड बाय h माइनस. अब यहाँ देखो, यहाँ से भी हम समेशन an बाहर ले जा सकते हैं, तो मैं इसको भी इसी ब्रैकेट के अंदर इंक्लूड कर लेती हूँ. सो दिस इज माइनस n z द पावर n minus 1. Alright, this is whole mod. Now this mod is less than equal to इसका अलग mod और इसका अलग mod. इसका mod अलग आ जाएगा an के साथ और इनका mod अलग आ जाएगा. So this mod is less than equal to summation n going from 0 to infinity mod of an into mod of z plus h the power n z the power minus z the power n over h minus n z the power n minus 1. Okay, now यहाँ से from 1 because series is bounded
सो मॉड ऑफ ए एन की जगह क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू के ओवर रो द पावर एन. दिस इज फ्रॉम 1. So this mod of an is less than equal to, ये summation as it is, k over रो n. ठीक है, पीछे from 1 से हम ये चीज़ लिख रहे हैं और इसको हम बायनॉमियली खोल देते हैं. तो z प्लस एच द पावर n कैसे लिखेंगे, दिस इज एन सी ज़ीरो z द पावर n प्लस एन सी वन z द पावर n माइनस 1 h प्लस एन सी टू z द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर सो ऑन एन सी एन h द पावर n माइनस, सॉरी एक टर्म और मुझे लिखनी है, एन सी एन माइनस 1 वाली भी लिखनी है, सेट एच द पावर n माइनस 1 प्लस एन सी एन एच द पावर n माइनस z द पावर n माइनस ये वाली सेकेंड टर्म एन जेड द पावर n माइनस 1, ये पूरा का पूरा डिवाइड बाय h. खाली ये फर्स्ट वाली टर्म डिवाइड बाय h, सेकेंड वाली विदाउट h है. ठीक है, ये मॉड हमने बंद कर दिया. सो दिस इज इक्वल टू के बाहर कर दो, सम n गोइंग टू 0 to infinity 1 over रो n. नाउ एन सी ज़ीरो इज़ 1 और ये रह जाएगा z दी पावर n और यहाँ पर है माइनस z दी पावर n. तो बिकॉज एन सी ज़ीरो 1 होता है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. सो दिस टर्म एंड दिस टर्म कैंसल्ड आउट. सो वी आर लेफ्ट विथ एन सी वन z the power n minus 1. okay, I am also cancelling this h. okay, सबके साथ एक एक h प्रेजेंट है तो h और h आपस में हर टर्म के साथ कैंसिल भी कर रही हूँ मैं. सो ये h हट गया इस h के साथ, प्लस एन सी टू z the power n minus 2h. सो ऑन एन सी n minus 1 z h n minus 2 plus this is n c n h n minus 1 minus n z the power n minus 1. ठीक है, अब यहाँ पर देखो एन सी वन क्या होता है n और यहाँ पर रह गया z n माइनस 1. सो दिस इज n z n माइनस 1, दिस इज ऑल्सो n z n माइनस 1. तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए. ठीक है, इसलिए मैंने आपको पीछे वो रिमार्क्स में लिखवाया था कि एन सी ज़ीरो क्या है, एन सी एन क्या है. ठीक है, वहाँ से हमने इसको कैंसिल कर दिया. सो नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू के समीशन n गोइंग फ्रॉम 0 to infinity 1 over रो n. हमारे पास अब ये अंदर वाली टर्म्स रह गई हैं, एन सी टू z द पावर n माइनस 2h प्लस एन सी एन माइनस 1 z h n माइनस 2 प्लस एन सी एन h n माइनस 1. इतनी बात हो गई. ओके, सो दिस इज फर्दर लेस देन इक्वल टू के समीशन n गोइंग फ्रॉम 0 to infinity 1 over रो n n c2 z n minus 2
एच, इसका हम मॉड लेंगे, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू, जैसे मॉड ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी होता है, हम सबका अंदर अंदर मॉड ले लेंगे, प्लस एन सी एन माइनस वन मॉड ऑफ जेड mod of h n minus 2 plus ncn mod of h n minus 1. ओके, अब हमने क्या करना है, हम n z n, हमने अभी पहले क्या कैंसिल किया था, n z n माइनस वन, ये हमने कैंसिल किया था। जो हमने पहले कैंसिल किया था वो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आगे जाके उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने अभी रिसेंटली ये आपस में कैंसिल किए हैं, तो हम करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट n z n माइनस वन। फिर थोड़े स्टेप्स आगे जाके हमने z दी पावर n कैंसिल किया था, n c ज़ीरो z दी पावर n कैंसिल किया था, तो फिर हम बाद में इनको भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये दो स्टेप्स हमने करने हैं। तो सबसे पहले हमने जो कैंसिल किया, क्या कैंसिल किया है, n z n माइनस वन, ठीक है, तो मैं इसको ग्रीन कलर से लिख रही हूँ। नाउ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट nc1 zn माइनस वन। So this is equal to k summation n going from 0 to infinity 1 over rho n. We are adding z n माइनस वन, और इसका साथ में मॉड लेना, वहाँ पर भी मॉड ले लेते हैं। जो चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसको मैं ग्रीन पेन से लिख देती हूँ, n mod of z n माइनस वन, ताकि आपको लर्न रहे, प्लस nc2 mod z n माइनस टू mod h प्लस ncn माइनस वन mod of z mod of h n माइनस टू प्लस ncn mod of h n माइनस वन, और साथ में ये चीज़ सब्ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट this summation 1 over rho n. Instead of n, write nc1 mod of z n minus 1 plus okay, again in this step I am multiplying and divide by h also, so this is mod of h. अब इसी स्टेप में मुझे मॉड एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करना है, प्लस nc2 mod of z n माइनस टू mod of h स्क्वायर, सो दैट हमारी ये इनकी आपस में जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट रहे, प्लस ncn माइनस वन mod of z mod of h n minus 1 ncn mod of h n minus n mod z n minus 1 divide by
मॉड एच। सी मैंने सिर्फ इस पार्ट, ये जो सेकंड वाला जो ग्रीन पार्ट है इसको छोड़कर जो ये वाला पोर्शन है इसमें ही मैंने मॉड एच मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, इसको ऐसे का ऐसे ही रहने दिया है। ठीक है, तो ये आपका जो डिवाइड बाय मॉड एच है वो इन टर्म्स के लिए है, इस सेकंड वाले पार्ट के लिए नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है, एन सी ज़ीरो मॉड जेड एन। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि इस स्टेप में मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एच किया है। मॉड एच। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अब हम एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग एन सी ज़ीरो mod z the power n, add and subtract nc0 mod of z the power n। यहाँ पर हम nc0 जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारी पूरी फिर से बायनोमियल बंद हो जाएगी। So this is k sum 0 to infinity 1 over rho n so this is nc0 mod of z the power n, okay, प्लस बाकी सारी टर्म्स वैसे की वैसे ही nc1 mod of z n minus 1 mod h plus nc2 mod of z n minus 2 mod h square up to so on, ncn mod of h the power n माइनस, अब यहाँ पर nc0 नहीं लिख रही, यहाँ पर मैं यहाँ पर mod of z the power n लिखा है। एक ही बात है, हमें यहाँ पर nc0 मेंशन करना है, यहाँ पर इसको 1 ही रहने देना है बिकॉज nc0 इज़ 1 ओनली, माइनस ये बची हुई टर्म n mod of z the power n minus 1, इन सभी का डिवाइड बाय mod of h। आई एम अगेन रिपीटिंग कि इन सभी के नीचे मॉड एच है बट इसके नीचे नहीं है। इसके नीचे आपका 1 ही है। ठीक है, मॉड एच नहीं है। अब अगर हम ये देखें, आपकी ये पूरी बायनोमियल खुली हुई है तो हम इसको सम अप कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू के समीशन 0 to infinity 1 over रो एन, वो सारी की सारी बायनोमियल हो जाएगी mod of z प्लस mod of h द पावर n। ठीक है, ओवर और साथ में माइनस mod of z द पावर n ओवर mod of h, और साथ में वो लास्ट वाली टर्म n mod of z n minus 1। ठीक है, ओके। अब mod h बाहर ले आओ, दैट इज k ओवर mod h समीशन 0 to infinity, और रो n जो है वो अंदर ले जाते हैं। ठीक है, mod of z प्लस mod of h द पावर n माइनस mod of z द पावर n ओवर रो n माइनस n mod of z n minus 1, बिकॉज mod h हमने बाहर लिया है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर mod h आएगा ओवर रो द पावर n। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप यहाँ पर, बिकॉज हमें mod h बाहर लेके जाना है तो हम यहाँ पर
मॉड एच से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब देखो जब मॉड एच बाहर जाएगा तो इसके साथ मॉड एच रह जाएगा, ठीक है। नाउ इज इट क्लियर? ओके, सो दिस इज इक्वल टू, अब हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, के ओवर मॉड एच समेशन 0 टू इन्फिनिटी, हम इसको सेपरेट कर रहे हैं, दैट इज मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड एच द पावर ओवर रो होल पावर n माइनस z over rho whole power n minus, this is mod z mod of h n mod of z by rho, अगर ये n माइनस 1 है यहाँ पर तो यहाँ पर एक साथ में रो आएगा, बिकॉज अगर आप इन दोनों की पावर्स को ऐड करेंगे तभी आपका ये यहाँ पर n बनेगा, ठीक है। अब हमें सबके साथ ये वाला सम अंदर रखना है, की ओवर मॉड एच समेशन 0 टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ z प्लस मॉड h ओवर रो द पावर n, इसके साथ भी सम रखेंगे सबके साथ, 0 टू इन्फिनिटी mod of z over rho the power n माइनस mod h over rho बाहर ले लेते हैं, n 0 टू इन्फिनिटी mod z over rho the power n minus 1. Okay, so this is equal to k over mod h. Now this sum, we know that summation x the power n is equal to 1 over 1 by x. मैंने पीछे आपको नोट लिखवाया था, यहाँ पर ये देखो, समेशन एक्स द पावर एन इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स। समेशन अगर n साथ में होता है x द पावर n माइनस 1 तो वो 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इन दोनों चीज़ों को मैं आगे यूज़ कर रही हूँ अब अगले स्टेप में। तो यहाँ देखो, दिस इज़, अगर हम इस पूरे को x मान लें, दिस इज़ सम x द पावर n, तो वो क्या हो जाएगा 1 ओवर 1 माइनस ये वाला x मॉड ऑफ z प्लस मॉड h ओवर रो, ठीक है, माइनस दिस इज 1 ओवर 1 माइनस मॉड z बाय रो एंड दिस इज, अब यहाँ पर n साथ में है तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 1 ओवर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, so this is 1 minus mod z over रो इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम नोट। इतनी चीज़ क्लियर हो गई? ओके, अब हमने एलसीएम लेना है, रो यहाँ पर और रो ऊपर आ जाएगा, टेकिंग द एलसीएम। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। दिस इज इक्वल टू k over mod h, so this is rho over, I have taken the LCM, mod z minus mod h minus rho over rho minus mod of z minus rho mod of h over rho minus mod of z square this is equal to k over mod h. अब
इन दोनों टर्म्स को हम, दिस इज रो ओवर दिस माइनस रो ओवर दिस, सो दिस इज इक्वल टू रो मॉड ऑफ एच ओवर, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो यू विल गेट दिस रो माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस, वो कट जाएंगे आपस में ऊपर वाली टर्म्स, ठीक है। दिस इज रो माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस रो मॉड ऑफ एच ओवर रो माइनस मॉड जेड का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ से मॉड एच कैंसिल हो जाएंगे, मॉड एच को बाहर ले आओ, सो दिस इज के इंटू रो ओवर रो माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस मॉड ऑफ एच इंटू रो माइनस मॉड ऑफ जेड माइनस दिस रो ओवर रो माइनस मॉड ऑफ जेड दिस होल स्क्वायर, ऑलराइट। सो नाउ लेटिंग, अब हमने h को 0 टेंड करना है, लेटिंग h टेंड्स टू 0 वी विल गेट लिमिट h टेंड्स टू 0, जो हमारा फर्स्ट से हम लेकर आ रहे थे, जो हमने लिखा था स्टार्टिंग से, जो हमने शुरू किया था वही चल रहा है। तो अब मैं वो LHS यहाँ लिख रही हूँ, f ऑफ z ओवर h माइनस, अब यहाँ पर अगर h 0 हो जाएगा तो आपकी ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पर इसको 0 करो, ये नीचे वाला डिनोमिनेटर स्क्वायर में हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस माइनस summation n going from 1 to infinity n a n z n minus 1, ये मॉड अब हमारा 0 हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू का साइन पहले से लेस देन इक्वल टू का चल रहा था। सो दिस इम्प्लाइज, अगर मॉड लेस देन इक्वल टू 0 है तो सिंपल लिमिट h टेंड्स टू 0, ये ब्रैकेट ये भी हमारा आपस में दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मॉड लेस देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हमारा जो है बिना मॉड के, विदाउट मॉड, ये चीज़, ये टर्म जो है इक्वल टू 0 आ गई। अब दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ ये वाली चीज़ दूसरी साइड ले जाओ, दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अब हम f ऑफ z प्लस h ऐसे ही लिख देते हैं, ओवर h, दिस इज इक्वल टू summation 1 to infinity n a n z the power n minus 1, यही हमें रिजल्ट प्रूव करना था। सो एफ जेड इज डिफरेंशिएबल एंड हेंस एनालिटिक फॉर मॉड जेड लेस देन आर। अब इसकी जगह हम एफ डैश जेड वापस लिख लेते हैं, thus f of z is differentiable and hence analytic for mod of z less than r with f dash z is equal to summation n going from 1 to infinity n a n z the power n minus 1। तो जस्ट इस थ्योरम के प्रूफ में हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया था, कन्वर्जन की डेफिनेशन से शुरू किया था। कन्वर्जन से हमने लिमिट 0 की, फिर उस लिमिट 0, क्योंकि अगर किसी सीरीज़ की लिमिट 0 है तो वो जो सीरीज़ बाउंडेड है, तो हमने लेस देन इक्वल टू के किया। फिर जो हमें प्रूफ करना था वहीं से हमने स्टार्ट करना है मॉड, उसको चलते जाओ, स्टेप्स चलते जाओ, हमने बायनॉमियली उसको स्टेप्स को ओपन करना है। उसके बाद कुछ ना कुछ टर्म्स कटेंगी, जो टर्म्स कट रही हैं बाद में उन्हीं टर्म्स को हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और उसके बाद जो मैंने आपको नोट्स दिए थे
कि उस सीरीज़ को कैसे हमने सम अप करना है, वो यूज़ करने हैं और वहाँ से हमारा रिज़ल्ट एंड अप होता है. सो दीज आर द स्टेप्स विच वर यूज्ड इन प्रूविंग दिस theorem. So this is a very nice proof. So thank you everyone.